Once again, most welcome to all of you. We are going to start the class of preposition. You can see the heading, preposition is going on in the class. Yes, sir. We have already finished several prepositions like over, under, above, beyond, or against, below, above, beneath. So in this class, we are going to start a new preposition. Let me know first of all. I have already taught you what's the meaning of preposition and what is the function of preposition. noun and pronoun. Where to use preposition in the sentence? Become noun and pronoun. Become noun and pronoun. Preposition is used before noun and pronoun, and it shows its relation with other words in the sentence. Anybody will ask you what is preposition, where to use preposition. You will simply say that preposition is used just before noun and pronoun, and it shows its relation to some other words in the sentence. It's just like a small type of connectors. Yes, sir. The big connector in our parts of speech is conjunction. The conjunction joins four words, word with word, clause with clause, phrase with phrase, and sentence with sentence. But preposition is used to join only, it is used before noun and pronoun. And it shows its relation with any other word like adjective, verb, adverb, preposition. Okay, so we are going to start a new preposition, that is on. On. Today we are going to study on. Usage of on. Usage of on. The whole prepositions are very important because it's very necessary to know where to use in, where to use and where to use on, over. So this topic will help you in your common errors, close test, sentence improvement. So on, you might have heard about the usage of on. On means, अगर इसका हम मीनिंग जाने, on का मतलब क्या होता है? पर। बालाजी, तो पर के सेंस में हमारे प्रेपोजिशन में बहुत सारे प्रेपोजिशंस आते हैं. जैसे एट भी पर का सेंस देता है. ऑन मतलब भी पर का होता है ना? Yes, sir. तो ये थोड़ा सा मिसलेनियस है, बट अगर हम इसका यूजेज पे ध्यान दें, अच्छा से इसको क्या करें, रिवाइज करें, पढ़ें, तो अपडेट रहेगा कहाँ पे पर के सेंस में ऐड करें. जिसे हम कहते हैं कि वह आज काम पर है, तो ही इज एट वर्क. ऑन वर्क बोलेंगे नहीं सर. हम कहें कि वह आज ड्यूटी पर है, ऑन ड्यूटी तो ऑन ड्यूटी बोलते हैं. तो ये दिखाता है कि preposition is just like a subject and topic of practice. The more you practice, the better awareness you can get in the field of preposition. ठीक है? तो कहाँ पे in, कहाँ पे at, on. अब देखो जब हम न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, कोई भी लाइन पढ़ते हैं, पैराग्राफ, ठीक है, तो पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि at, in, of कैसे यूज किया गया है. कभी कभी देखो ना, consist के साथ क्या आता है? of. Despite के साथ क्या आता है? हाँ, कोई ऑफ. जब हम न्यूज़ पेपर पढ़ेंगे तो ये सब वर्ड पे देखेंगे डिस्पाइट आया है, डिस्पाइट इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ. ठीक है, तो इससे बहुत सारे पेपर में हमारे कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट टुडे द यूजेज ऑफ ऑन इन अ वेरी क्लियर एंड सिस्टमेटिक वे. रूल नंबर 1. पहला रूल आपको बहुत आसान होगा, आपको पता होगा कि ऑन का यूज कहाँ करते हैं. अपने से बताइए, ऑन का यूज किस लिए करते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस है. नहीं, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज़ सरफेस के टच में हो. किसके टच में हो? सरफेस के. तो सरफेस के टच में अगर कोई चीज़ होगा तो ऑन का यूज करेंगे. जैसे अक्सर लोग बोलते नहीं हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल. बात समझ में आ गई? यस सर. तो व्हेन समथिंग इज इन टच विथ द सरफेस, ठीक है, जब कोई भी चीज़ सरफेस के टच में हो, और टच में होना चाहिए. अगर टच में नहीं है तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और एग्जाम्पल इसमें आएगा तो हम लोग भरेंगे. ठीक है, यस सर. रूल नंबर 1 लिखिए. ऑन, व्हेन समथिंग इज इन टच विथ सरफेस, और कह सकते हैं कि व्हेन समथिंग इज इन टच विथ समथिंग, ये भी बोल सकते हैं, वही सरफेस वाला बात आ जाएगी. when something is
in touch with something. जब कोई भी चीज किसी चीज के टच में हो, इसमें क्या आता है, टोटल वेट की बात होती है। किसका? टोटल वेट। किसी भी चीज का टोटल वेट किस पे पड़ता है? Surface. सरफेस पे। सरफेस इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Yes, for example, the fan is moving overhead. फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड, आप लोग सुविधा अनुसार, आपको पता है मीनिंग भी देखना है और यूजेज ऑफ ग्रामर भी देखना है। बहुत सारे चीज़ों का मीनिंग के बिना हमारा जो रियल प्रेपोजिशन है या वर्ड है वो हम गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका मीनिंग क्या कहते हैं और आप कौन सा प्रेपोजिशन को प्रेफर करते हैं। द कैप इज, आप लोग थोड़ा फास्ट चलिएगा, ये नहीं कि आप बीच में नोट करते रहें। जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते चलिए ताकि आपका हो, और एग्जाम्पल में आप आंसर दीजिएगा अच्छा से। Yes, sir. द कैप इज, The cap is on the head. जो भी हो। वाटर इज ग्लास। पुट द बुक टेबल। Put the ladder wall. I am standing gate. I am standing wall. The spectacles are nose. The matter is mind. आप अच्छा से प्रैक्टिस करें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि पेपर में हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे इन, एट, विथ, बाय, फॉर, ओवर आएगा। योर प्रैक्टिस एंड योर अंडरस्टैंडिंग विथ मीनिंग विल हेल्प यू टू चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट, द फिश लिव्स, the fish cannot live water. The man cap head is a driver. Is a briber. B-R-I-B-E-R. Briber means क्या होता है? घूसखोर। ठीक है, जो पैसा लेता है, काम करता है, दलाल। सॉरी केवल, he is bending table. Is bending the table. So let's start. I am getting your response. Are you ready to give your response? Yes, sir.
अब आप लोग इस खाली जगह को उन प्रेपोजिशन से भरिए जिसमें मीनिंग के अकॉर्डिंग इनका डिमांड है। क्या मीनिंग कर रहा है? यहाँ पे तो बताया गया कि ऑन व्हेन समथिंग इज इन टच विथ सरफेस, जब भी कोई चीज़ सरफेस के क्या हो, टच में हो, तो हम क्या भरेंगे? ऑन, याद रखेंगे। और व्हेन समथिंग इज इन टच विथ समथिंग, लेकिन उसमें भी सरफेस की बात आएगी। टोटल वेट अगर किसी चीज़ पे पड़े, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, तो क्या होगा? ऑन होगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एक और लिखिएगा, ही व्हेन होम स्कूल फुट। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 खाली जगह है, इसमें क्या करना है, और यू मे हैव आइडिया। फुट, FOOT। बताइए फर्स्ट में क्या भरा जाए? द फैन इज मूविंग ऑन। क्या ऑन आपको जस्टिफाई कर रहा है ना? फैन मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है? सर ओवर होगा उसमें। हाँ, तो फिर मीनिंग के हिसाब से देखना था कि नहीं? फैन घूम रहे हैं कहाँ? सर के ऊपर, टच में है। नहीं सर। अगर फैन सर से टच होके मूव करेगा तो या तो बाल उड़ा देगा या तो गर्दन उड़ा देगा, है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, कभी भी आदमी क्या होता है, बिना ध्यान दिए हुए स्टैंड अप हो जाता है, कहीं भी फैन मूव करते रहता है, तो कभी देखते हो, कभी हाथ ऊपर करने से फैन से टकरा जाता है, या बाल में भी टच कर जाता है, कभी कभी लग भी जाता है। तो इस सबसे केयरफुल रहेंगे। द फैन इज मूविंग ओवर वो ऑन गलत है, क्या बनेंगे? ओवर। इतना तो कॉमन सेंस है कि हम लोग को जानकारी होना चाहिए। अभी देखिए ये वर्ड ऑन, कैसे ऑन करें भाई? क्या दिमाग में आया आपको? ऑन चल रहा है। हाँ, ऑन चल रहा है, तो हम जरूरी थोड़ा है कि हम सब पेपर में कंपैरिजन एंड एनालिसिस आर द बेस्ट टूल्स। हमको कंपैरिजन करना है कि नहीं? तो याद रखिएगा, स्टडी विदाउट कंपैरिजन इज द वन साइडेड नॉलेज। ठीक है, इफ यू वांट टू डेवलप योर नॉलेज मीन्स यू हैव नॉलेज ऑफ कंपैरिजन। क्या रखना होगा? कंपैरिजन का नॉलेज। कहाँ पे ऑन, कहाँ पे एट, कहाँ पे ओवर। ठीक है, तो एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस। सेकेंड, द कैप इज ऑन द हेड। हाँ, ये सरफेस को टच करता है। यस सर। ये हेड है आपका सरफेस। अब टोपी रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? सर पे रखेंगे ना। यस सर। अब ऐसे थोड़े कि 1 इंच ऊपर रखेंगे टोपी, भूत है। द कैप इज ऑन द हेड, सही बात। थर्ड नंबर में वाटर इज इन द ग्लास। ऑन द ग्लास। पर ऊपर रहेगा ग्लास। पानी है ग्लास पर। पानी एरिया बताता है, Yes, sir. कि हम ग्लास में हम रखेंगे तो पानी का एरिया दिखेगा around the glass. अराउंड द ग्लास। क्या दिमाग? ग्लास में पानी है तो Water is in the याद glass. रखेंगे, हम पर रहे हैं ऑन का यूज, लेकिन हम अलग अलग टाइप के वर्ड दिए हुए Yes, हैं, sir. मीनिंग दिया हुआ है। Yes. आपको क्या कहे हैं कि मीनिंग से इंसान जीतता है। किससे जीतता है? Meaning मीनिंग से। से। तो कोई भी स्टडी हो, चाहे प्रेपोजिशन हो, मैथ हो, चाहे कुछ भी, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो केवल ये नहीं कि रट्टाफिकेशन है, हमारा क्या होना चाहिए? कंसेप्ट, मीनिंग। मीनिंग के आगे कौन झुक जाता है? ग्रामर पे झुकता है। आपसे पूछा जाए कि ग्रामर स्ट्रांग है कि मीनिंग स्ट्रांग है? मीनिंग। मीनिंग स्ट्रांग है। Yes. अगर मीनिंग कुछ कह रहा है, ग्रामर आप कुछ कह रहे हैं तो नहीं होगा। याद रखेंगे, मीनिंग के सामने ग्रामर को भी झुकना पड़ता है। तो मीनिंग आपको जस्टिफाई करता है कि क्या सिलेक्शन करें। वाटर ऑन नहीं, ऑन वाला जवाब है। इन होगा। वाटर इज इन द ग्लास। ये देखिए, ये रहा ग्लास, है ना? यस सर। और इसमें क्या है? पानी। पानी है, मान लीजिए पानी। तो ये क्या बताया? पानी। एरिया बताया। क्या बताया? एरिया, सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स। तो जब भी एरिया या सराउंडिंग्स बताएंगे किसी भी चीज के लिए तो किसका यूज करेंगे? इन का। ये जो पानी है किसमें है? ग्लास में। हम कहते हैं कि ग्लास टेबल पे। द ग्लास। द ग्लास इज ऑन द टेबल, बट वाटर इज इन द ग्लास। ठीक है, कॉफी इज इन द कप। ये सब एरिया बताएगा। आइए, पुट द बुक ऑन द टेबल। हाँ, क्योंकि ये सरफेस से टच है इसका। यस सर। बुक का सरफेस से टच है। जब भी कोई चीज़ टच को सरफेस पे बताया जाए तो ऑन। अब बुक का जितना वेट है किस पे पड़ रहा है? तो बताया है टोटल वेट सरफेस पे पड़ता है, तो क्या आएगा? ऑन। फिफ्थ नंबर, पुट द लैडर वॉल, द वॉल ऑन द। ऑन द वॉल। कहते हैं कि
सीढ़ी रखिए दीवार पर, दीवार है, दीवार पर सीढ़ी रख सकते हैं। पर का मतलब हुआ कि टोटल वेट पड़ना चाहिए उसका। आप जो सीढ़ी रखते हैं तो दीवार तो ऐसे खड़ा रहता है, तो सीढ़ी भी उसके पैरेलल में खड़ा रहता है। अगेंस्ट होगा इसमें। हाँ, अगेंस्ट हम कितना बार पढ़ाए हैं यस सर। कि अगर 50%, यहाँ देखिए टोटल वेट पड़ता है सरफेस पे तो ऑन, लेकिन अगर 50% कितना पड़ेगा, 50% अगर वेट, ठीक है, किसी चीज पे दे रहे हैं, बाकी 50% वो वस्तु खुद कंट्रोल कर रहा है या व्यक्ति, तो उसके लिए कौन प्रीपोजिशन आएगा, अगेंस्ट। ठीक है, के सहारे, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, के सहारे। कहते हैं कि दीवार को, सॉरी, सीढ़ी को दीवार के सहारे क्या करो, रखो, पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। तो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीजीएल, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस में खूब आएंगे भरने के लिए। उस समय दिमाग ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि पुट आया है सर हम पुट के साथ याद किए हैं, पुट के साथ जब भी आता है ऑन आता है, भाई मीनिंग चेंज हो सकता है अगर दूसरा वर्ड आया हो। तो पुट के साथ क्या आया है, लैडर। यहाँ क्या आया था, बुक। सबको पता है बुक रखेंगे तो दीवार पर रखेंगे, बुक कहाँ रखेंगे, टेबल पर रखेंगे। हम कहेंगे बुक रेक में रखा हुआ है, तब क्या प्रीपोजिशन भरेंगे, द बुक इज डॉट डॉट ऑन द रेक। क्या इन भरेंगे, द बुक्स आर, क्या भरिएगा, इन द रेक, क्योंकि यहाँ एरिया बताया कहाँ रखी गई है, रेक में। तो आप हिंदी देखेंगे, ये नहीं कि रेक पर रखी गई है, बुक रेक में रखी हुई है। ठीक है, पानी ग्लास में है, चाय कप में है, तो एरिया बताएगा तो क्या होगा, इन होगा। आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। गेट, गेट है, अच्छा। इन द गेट, नहीं, इन इज द रॉन्ग आंसर। यस सर, आई एम स्टैंडिंग। कैसे, इन का मतलब क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ गेट में सर। हाँ, इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो हमें प्रीपोजिशन बनना है, फ्रेज नहीं, इन फ्रंट ऑफ फ्रेज। अगेंस्ट में हो सकता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि मैं गेट के सहारे खड़ा हूँ। तो अक्सर लोग क्या होता है, गेट के पास आके गेट के सहारे खड़े हो जाते हैं। या अगर आप यहाँ अलग अलग प्रीपोजिशन भर सकते हैं, एक तो अगेंस्ट सही है, दूसरा इन गलत है। इन का बिहाइंड हो कैसे, जाएगा सर, अच्छा इन का मतलब क्या होता है, अंदर। इन का मतलब में होता है। भाई आप लोग हिंदी में भी कमजोर है, अंग्रेजी में तो है ही है। ऑन मतलब पर, एट मतलब पर, इन मतलब में। ठीक है, इन मतलब अंदर भी होता है, लेकिन उसका जैसे कम इन कहेंगे तब अंदर आने का सेंस है। खाली इन से जरूरी नहीं है कि अंदर के सेंस में ही इन आता है, बहुत सेंस में क्या आता है, इन आता है। विदाउट का मतलब, ये बिना। ओवर का मतलब, ज़्यादा। ओवर मतलब ज़्यादा। ये बेसिक ज़्यादा भी होता है, लेकिन रियल मीनिंग होता है के ऊपर। जब कोई चीज़ टच में नहीं है तो क्या भरेंगे, ओवर, और जब टच में है तो ऑन। तो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। हाँ, अगेंस्ट इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन में अगेंस्ट ना हो तो क्या भर सकते हैं, एट भी भर सकते हैं। आई एम स्टैंडिंग एट द गेट, मैं गेट के पीछे भी हो सकता है। हाँ, गेट पे क्या हूँ, खड़ा हूँ। ही इज स्टैंडिंग एट द गेट। ठीक है, ऐड कर सकते हैं आप जब प्रेजेंटेशन शो करते हैं कहीं भी, तो हम गेट पे ही हैं, आई एम स्टैंडिंग एट द गेट। ठीक है, तो दो प्रीपोजिशन। अब ये सब कैसे आया, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें चीज़ें निकल के बाहर आएगी। आगे 7th में भरिए, आई एम स्टैंडिंग ऑन द वॉल। ऑन द वॉल। दीवार पे भी तो खड़ा रहता है ना कोई। अब दीवार पे खड़ा है, चलिए दीवार पे खड़ा है तो प्रीपोजिशन में ऑप्शन है आपका, ऑन है और अगेंस्ट है, ठीक है, विथ है, टू है, तो क्या करेंगे, अगेंस्ट दीवार। क्योंकि दीवार पे खड़ा होना उतना लॉजिकल और तार्किक नहीं है। ठीक है, दीवार पे भी आप खड़ा हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन दीवार के सहारे जनरली लोग ज़्यादा खड़े होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम अभी हैं, हम भी अपना बोर्ड के सहारे, दीवार के सहारे ऐसे हो जाएंगे। तो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। तो व्हेन वी आर गोइंग टू टेक 50% सपोर्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू यूज अगेंस्ट। और टोटल वेट इज नॉट ऑन द वॉल, माई टोटल वेट इज नॉट ऑन द वॉल, बिकॉज 50% आई एम गेटिंग माई सपोर्ट विथ माई लेग्स। किसका सपोर्ट ले रहे हैं, लेग्स। अब 50% हमने इस पर दिया हुआ है, तो टेकिंग 50% सपोर्ट वी आर गोइंग टू टेक अगेंस्ट, बट टेकिंग 100% सपोर्ट ऑन। ठीक है, तो ये क्लियर एकदम रखेंगे। आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट द वॉल। आइए इस पे, द स्पेक्टिकल्स आर नोच। चश्मा है, कहाँ है, अब मीनिंग निकालो आप। ऑन सर, ऑन, नाक पर चश्मा है, ये बोलते हैं ना। Yes, sir. तो पर का अंग्रेजी एट भी होता है, ऑन भी होता है। तो चश्मा का वेट जो है टोटल, सबके सब डिपेंड है किसके ऊपर, जब टोटल वेट है तो ऑन होगा। ध्यान रखें, क्या लिखेंगे,
अच्छा, द मैटर इज ओवर माई माइंड. ओवर माई माइंड, बात मेरे दिमाग के ऊपर. कैसे? आज बात दिमाग के ऊपर है, आप सोचते कैसे? इन माई माइंड सर. हाँ, मैटर कहाँ है? मेरे दिमाग में. ये दिमाग में आइडिया है, ओपिनियन है, बात है, ठीक है. इसके लिए एरिया सर्कुल क्या होता है, सराउंडिंग्स की बात हो रही है. तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एरिया सराउंडिंग्स, तो हम किसका यूज करेंगे? इन का. यहाँ आप ऐसे भी नॉर्मली लोग बोलते रहता है कि द मैटर इज इन माई माइंड, पेन इज इन माई पॉकेट, ठीक है, सिंपैथी इज इन माई हार्ट, ठीक है. तो सोल्यूशन इज इन योर माइंड, ऐसे बोलेंगे ना, सोल्यूशन आपके दिमाग में है. तो यहाँ पे ओवर गलत है, क्या बोलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिश कैन नॉट लिव डॉट डॉट वाटर. विदाउट. ओवर द वाटर. इनका तो दिमाग कहाँ चल रहा इस है ना बिना पानी के नहीं रह सकती है. वाटर से बाहर है? पानी क्या के मतलब बाहर। आएगा इसका? मछली, बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती. मछली क्या मीनिंग निकलेगा? वैसे बिना पानी के ना रह नहीं सकती। हाँ, तो बिना पानी की मछली नहीं रह सकती, तो ओवर भरेंगे तो क्या मतलब आएगा? तो पानी के बाहर तो वो मर सकती है। मछली नहीं रह सकती है ओवर पानी के ऊपर. पानी ओवर मतलब निकाला हुआ, मतलब पानी नहीं, से ये अलग, पानी से अलग। इसमें विदाउट यहाँ ओवर नहीं भरेंगे. सबको पता है कि मछली पानी में रहती है, पानी के ऊपर नहीं रहता है. ऊपर कोई चीज़ रह सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे. जैसे हम किसी चीज़ को, फैन हुआ, ये सबको ओवर कर सकते हैं. मछली को सबको पता है कि पानी के ऊपर क्यों रहती है वो. या तो विदाउट आएगा ना. हाँ, अगर इसमें नॉट हटा दें तो द फिश लिव्स क्या बोलेंगे? इन वाटर. लेकिन यहाँ पे निगेटिव है. निगेटिव है तो मीनिंग क्या आ रहा है? बिना पानी के मछली जीवित नहीं रह सकती. तो बिना काम करके क्या होता है? विदाउट. विदाउट. द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. द फिश कांट लिव विदाउट वाटर. ठीक है. और मछली की बात ही हटाइए. आप पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं सर. तो फिर देखो, मछली तो ठीक है, मछली के लिए पानी से ही सब कुछ है, क्योंकि उसका घर पानी है. पानी सांस लेती है। हाँ, वो पानी मिलेगा तो ही सांस लेगी, जिंदा रहेगी. अब पानी नहीं मिलेगा तो अच्छा, ये बड़ी इस धरती पे कुछ चीज़ें हैं. आदमी को पानी अचानक आ जाए तो डूब भी सकता है. जैसे हम लोगों को पानी ज़्यादा, पानी में क्या हो जाता है? नहीं रह सकते. लगता है. अब वो पानी के बाहर वो सांस खुलने लगता है, मछली का तड़पने लगती है ना. तो हैव पिटी ऑन द फिश. मछली पे क्या करें आप? जब पानी से बाहर हो तो पानी में डाल दीजिए उसको. भाई पानी में वही उसका घर है. ठीक है. आइए 9 नंबर, द मैन. आप पैक है सर. बोलो. डाली दे पता नहीं सर. हमने पूछ. कैप। अच्छा, कैप. CAP. कैप मीन्स टोपी. द मैन डॉट डॉट कैप द हेड इज ऑफ ड्राइवर. ड्राइवर मतलब उसको मीनिंग पता चल गया ना. सर पे टोपी लिया हुआ व्यक्ति क्या है? घूसखोर है. सर पे टोपी लिया हुआ व्यक्ति है, घूसखोर है. क्या क्या बनेंगे यहाँ पे सर द मैन एंड ऑन अ कैप। ऑन ए कैप. इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी है टोपी पर. टोपी पर आदमी है. A man at a cap. Sir, a man at a cap on the head is brave. हाँ, यहाँ कैप कहाँ है? हेड पे. Yes sir. तो टोपी सर पे है तो यहाँ ऑन बढ़ेगा ना. Yes sir. यहाँ पे ऑन कहाँ से बढ़े? जमीन जगह ऑन नहीं होगा। यहाँ पे क्या कहता है कि सर पे टोपी लिया हुआ व्यक्ति घूसखोर है. तो देखो, सर पे टोपी लिया हुआ व्यक्ति, तो हुआ के लिए हम लोग पढ़े थे ना. लिया हुआ का मतलब वो कंपनी के साथ है. चलिए. कंपनी के साथ. तो कंपनी के लिए क्या आएगा? विथ. और जब भी बाद वाला नाउन फर्स्ट नाउन की विशेषता बताए, जब भी क्या, ध्यान समझिए, ये भी नाउन, ये भी क्या है? Noun. नाउन. जब भी बाद वाला नाउन फर्स्ट नाउन की क्या बताए? विशेषता. क्वालिटी, विशेषता बताए, तो विथ यूज करेंगे. ठीक है. जैसे कि द मैन विथ ए बुक. पुस्तक लिया हुआ व्यक्ति. ठीक है. द मैन विथ ए कैप. टोपी लिया हुआ व्यक्ति. ठीक है. द मैन विथ ए बैग इन द हैंड. हाथ में बैग लिया हुआ व्यक्ति एक डॉक्टर है. तो क्या बोलेंगे? द मैन विथ ए बैग इन द हैंड इज ए डॉक्टर. है कि नहीं? Yes sir. तो ये सब अपडेट करेंगे. अपडेट, कीप इट अपडेटेड, है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ है? The man with a cap on the head is brave. द मैन विथ ए कैप ऑन द हेड इज ए ब्राइडल. ही इज बेंडिंग. यहाँ सही आंसर दीजिए. ही इज बेंडिंग. Is bending. Is bending on the table. हाँ, he is bending on the table. He went home. Dot dot. He went at home. He went at home. He went At home. Sir, home At तो home.
इसमें कुछ नहीं रखेगा प्रीपोजिशन। हाँ, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं, आपको बताया हुआ है Yes, sir. गो और होम के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं नहीं लेते। होता। ये सिटी है, एसएनडी है, बैंकिंग में कॉमन एरर पूछता है। अक्सर आ जाता है एग्जाम में कि राहुल वेंट टू होम स्टडी, तो याद रखेंगे कॉमन एरर हो गई ना। क्या Yes, एरर sir. हुआ? राहुल वेंट होम स्टडी, टू का यूज नहीं नहीं करना। करना। यहाँ कोई कुछ नहीं भरना है। और यहाँ पे क्या भरेंगे? इसमें भरेंगे राहुल घर गया, कहाँ से घर गया? स्कूल से, तो क्या होगा? फ्रॉम फ्रॉम। ऑन फुट, स्कूल से घर गया, कैसे गया? पैदल, पैदल। यहाँ पे क्या बोलेंगे? On. ऑन, क्योंकि पैदल गया तो पूरा बॉडी का वेट किस पे है? पैर पे है उसका। Yes, sir. तो पैर जो है ना, वो पैर नीचे पूछिए उससे वहाँ तक फुट पे, ये पूरा बॉडी का वेट पड़ता है। वो हमेशा बोलते रहता है पूरा बॉडी को कि तुम लोग निकल में सारा वेट हम ही तो देखो। ऑन का यूज। और लास्ट में द बुक्स आर In the rake. हाँ, इन द रेक। तो ये हमारे प्रेपोजिशन है, ऑन का फर्स्ट रूल है। लेकिन हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं जो इन एट विथ आपके मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको हेल्प करेगा। कभी भी प्रेपोजिशन को इस अंदाज में पढ़ेंगे ताकि आपका अवेयरनेस क्लियर हो। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? नहीं। लेट्स स्टार्ट द सेकंड रूल।